Good morning, student. So in previous video, we already discussed question number 2 and 3 and some criteria, two more criteria, that is ASA criteria and AAS criteria. Okay. So in this video, we will take three questions. That is question 4, question 5 and question 6. Question 4, 5 and 6. So question number 4, line L and M are parallel to each other. Means these two lines are parallel. Okay. L is parallel to M and P is parallel to Q. अब ये दो लाइन parallel है और ये दो लाइन भी parallel है. So naturally this angle is congruous to this angle. They are alternate angle and this angle is congruous to this angle. थोड़ा कंफ्यूजन होगा मगर ध्यान से यदि आप देखेंगे तो चेक करेंगे BAC ACD ये दो एंगल इक्वल हो गए. अल्टरनेट एंगल है because these two lines are parallel. These two lines are parallel and this is the transversal. So one by one we consider here. First we consider which one these two angles. So naturally here P is parallel to Q, or we can write easily line P is parallel to line Q. Okay, and which one is the transversal? AC is a transversal. यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप सेपरेट डायग्राम बना सकते हो. P Q और ये आ गई आपकी ट्रांसवर्सल. तो दिख रहा है आपको ये दो एंगल? चेक करो, दिखाई दे रहा है? ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल. यदि नहीं समझ में आता है you can draw such type of diagram for understanding. Therefore angle BAC is congruous to angle ACD. Equation 1, alternate angles. Got it? Similarly second angle के लिए हमने यहाँ पे कंसीडर करना है line L parallel to line M. Line L is parallel to line M because it is given. And which one is the transversal? AC is transversal. यहाँ पे दोनों इसमें हमने AC को ही ट्रांसवर्सल लिया है. Therefore angle, अब पहले BAC लिया था तो ये वाला एंगल लेंगे BCA. Angle BCA is congruous to angle or equal. Congruent means equal. BCA CAD. Equation 2, alternate angles. यहां पे भी आप डायग्राम निकाल के चेक कर सकते हो. ये दो डायग्राम हो गई L और M और ये आ गई ट्रांसवर्सल. तो ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया जिसको मैंने इस तरह से शो किया है. दे आर द अल्टरनेट एंगल. ओके, अब ये दो एंगल तो आपको मिल गए और ये आ गई आपकी कॉमन साइड AC. चेक करो है कि नहीं? दोनों ट्रायंगल में सेम साइड आ रही. Therefore we consider in triangle ABC and triangle which one? CDA. दो ट्रायंगल लिए मैंने ABC CDA. In both the triangle from equation 1 what we will consider? देखो टेस्ट पहले चेक करना कौन सी लगेगी. दिख रहा है आइडेंटिकल मार्क्स. एंगल के बाद साइड के बाद एंगल. सो एंगल साइड एंगल कौन सा टेस्ट लगेगा? एंगल साइड एंगल. सो फर्स्ट वी कंसीडर एंगल BAC is congruous to angle ACD. ये लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1. एंगल हो गया. अब साइड लेंगे. AC is congruous to CA या फिर AC भी ले सकते हैं आप. यहां पे कॉमन साइड और तीसरा लेंगे एंगल. और एंगल कौन सा लेंगे? एंगल BCA is congruous to angle CAD from equation 2. Therefore triangle ABC is congruous to triangle CDA by ASA test. Now next question number 5. Line L is the bisector. Means this is the line L which bisect angle A. अब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है मींस ये दो इक्वल पार्ट्स बन गए. दीज आर द टू इक्वल पार्ट्स.
two equal angles. B is the point on L, B point L पे है, line L पे point B है. BP and BQ are perpendicular. BP is perpendicular to AB and BQ is perpendicular to AQ. Show that triangle APB, तो हम स्टार्ट करेंगे वहीं से. इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ये दो ट्राइंगल लिया. APB AQB, पहले एक ट्राइंगल के बारे में सोचेंगे. दिख रहा है एक पार्ट कॉन्ग्रुएंट, आइडेंटिकल मार्क्स है, यानी एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल A. साइड है क्या? नहीं है, साइड नहीं है, छोड़ दो इसको. साइड के बाद आता है एंगल, एंगल है, प्रेजेंट है, दिख रहा है, आइडेंटिकल मार्क्स है. एंगल के बाद क्या आएगा? साइड. तो साइड दिख रही है, AB इज द साइड इन बोथ द ट्राइंगल, सो वी विल कंसीडर. तो कौन सा टेस्ट हो गया? एंगल, एंगल, साइड. एकदम इजी मेथड है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की, एकदम इजी मेथड. व्हिच क्राइटेरिया वी विल अप्लाई, सो दैट इज द इजी मेथड टू आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ द टेक्निक. ओके, सो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, तो पहले एंगल के बारे में सोचना है. सो व्हिच एंगल वी कंसीडर? P. सो हियर एंगल APB is congruous to angle AQB because it is given. perpendicular दिया means given दिया है. got it? दूसरा एंगल ये वाला है, means एंगल PAB पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा. डोंट राइट एंगल A because एंगल A में दो एंगल दिख रहे हैं, इसीलिए पर्टिकुलर PAB, दिस एंगल. congruous to angle QAB, okay, because it is given, because the bisector is given. Okay, we will write bisector. And the third, which is not given, but by using the diagram, by using our previous concept, we can say that AB is congruous to AB because the same side in both the triangle. Therefore segment AB is congruous to segment. congruent का साइन दे सकते हो, इक्वल भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. is congruous to AB by common side. Okay, therefore what we write? Triangle APB is congruous to triangle AQB by angle side test. अब एंगल साइड टेस्ट से तो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं. अब हमको क्या चाहिए? BP is congruous to BQ means BP is congruous to BQ कब रहेगा? जब ये दो ट्राइंगल कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट. अब दो ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी हो चुके हैं. If two triangles are congruent, then corresponding parts are again congruent. Therefore, BP is equals to BQ, and here we write the reason: corresponding parts of congruent triangle. Corresponding parts of congruent triangle. Now next question, question number 6. AC is equals to AE. AC, here AC, and here AE. AB is equals to AD, okay. BAD means this angle, and EAC this angle, okay. So these two angles are equal. ये थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से यहां तक और ये वाला ये यहां पे, okay. Now here we want to show BC is equals to DE. BC means this side, and DE means this side. So if we consider BC, so naturally we want to consider this triangle. Which one? See here. I will draw the separate triangle ABC. ये निकालना पड़ेगा ये, और दूसरा ट्राइंगल हमको यहां पे लेना पड़ेगा इस तरह से. चेक करो जरा, चेक करना. आप चेक करते रहिए कि क्या ये दोनों डायग्राम इज इट करेक्ट और नॉट. दैट यू कैन आइडेंटिफाई. ओके, सो हियर A, C एंड E. अब इसमें कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट चेक करेंगे. A भी दिया है किसके साथ? AD के साथ. ये D है, D ये हो गया. उसके बाद में AC और AE दिया है, करेक्ट. बट दिस कंप्लीट एंगल A means BAC. This angle is not congruous to this angle because this gap is there. Got it?
मींस एंगल BAD यानी यहां से यहां तक ये एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? EAC तक, यानी यहां से यहां तक। ओके, बट वी वांट हियर BAC, मींस ये कंप्लीट एंगल चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल इसमें ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल मिलेगा BAC, और सेम एंगल हमको किस में ऐड करना पड़ेगा? EAC में। मींस व्हाट इज गिवन? द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन? एंगल BAD। BAD मींस ये छोटा सा पार्ट, BA इधर D है कहीं तो ये छोटा सा पार्ट इज इक्वल्स टू विच वन गिवन? EAC। यहां पे ये गिवन है, गॉट इट? अब हम क्या करेंगे? BAD में क्या ऐड कर रहे हैं? DAC ऐड कर रहे हैं। कौन सा एंगल ऐड कर रहे हैं? DAC। अब लेफ्ट हैंड साइड में DAC ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी DAC ऐड करना पड़ेगा। एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में मैंने DAC ऐड कर दिया। अब इसमें भी DAC ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? BAD प्लस DAC, गॉट इट? एंड हियर आल्सो EAC प्लस DAC। बहुत ही कंसंट्रेशन से आपको देखना पड़ेगा तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज नॉट। ओके, अब BAD मींस BAD यानी यहां से यहां तक। DAC तो यहां से यहां तक, ये दोनों मिलके क्या बन गया? BAC बन गया एंगल। सो वी गॉट हियर द एंगल BAC और EAC। ये देखो EAC और DAC ये दोनों मिलके क्या बनता है? EAD, एंगल EAD, इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ गए? अब इजी हो गया हमारे लिए। चेक करो, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल A। कौन सा टेस्ट आप लगाएंगे? जैसा अनुमान लगाइए, जस्ट यू आइडेंटिफाई which test we will apply, and for that we will go in the serial wise, side angle side angle side angle side angle side, सिंपल। यहां से जाएंगे। अब यहां से शुरू करते हैं एंगल से, बराबर? यहां से शुरू करेंगे। एंगल है क्या? चलो ए साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, चलो ये ले लेते हैं हमारे हिसाब से। चेक करेंगे, यहां से शुरू करते हैं बी से। एंगल है क्या? नहीं, छोड़ दो। साइड दिख रही है, आइडेंटिकल मार्क्स है। आइडेंटिकल मार्क्स से मींस हो सकता है, करेक्ट है। एंगल दिख रहा है, करेक्ट है। साइड दिख रही है, करेक्ट है। हो गया। फिर एंगल नहीं है, साइड नहीं है, एंगल नहीं है, साइड। सो हियर वी कंसीडर विच टेस्ट? एंड साइड एंगल साइड टेस्ट। अब इसको लिखना है। लिखने का तरीका एक ही है, इन ट्राइंगल। ये अरे प्रैक्टिस ही होना चाहिए इसके बारे में। इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल BAC लिया तो यहां पे DAE लेना पड़ेगा, DAE, बिकॉज BA इज कॉन्ग्रुएंट टू DA। तो 1 to 1 लेना है तो DA का रिलेशन A के साथ, C का रिलेशन E के साथ। ओके, BA कॉन्ग्रुएंट टू DA, इट इज गिवन, ये हो गया। उसके बाद एंगल आएगा तो एंगल ये लेंगे, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EAD। ये कहां से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिखेंगे हम लोग। और लास्ट वाला तीसरा पार्ट कौन सा है? सेगमेंट AC is congruent to segment AE because it is again given. Therefore what we write? Triangle BAC congruent to triangle DAE by SAS test. अब SAS टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि corresponding sides are also congruent. Therefore BC is congruent to what? DE, and this is CPCT. This is CPCT.